And I was saying that these concepts, like from radio communication failure condition onwards, you have observed कि deviation wala call that also is little complex. There you need to report your position first, and then you need to report the situation and what are the probable action a pilot can think of. Similarly, in aviation, there are certain paragraph of answer writing which are little complex. Complex in the sense just you need to formulate into steps. If you want to answer in a hurry, then you are going to miss certain conditions. Then you are going to miss certain terms that to be avoided. लेंदी आंसर्स में ये बहुत गुंजाइश होती है कि आप कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो आंसर करना. सो उसके लिए हर एक टर्म को अच्छे से समझना होता है. सो वाइल आई एम डिस्क्राइबिंग द कॉल्स और आंसर्स, दे आर पे लिटिल अटेंशन एंड लेट मी नो देन एंड देयर कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में. ठीक है, तो जहाँ पे मैं आंसर डिस्क्राइब करता हूँ वहीं पे पूछो कि सर ऐसा वाला यहाँ पे क्यों हुआ, why this sentence is there, why such sentence or why such paragraph is being answered for this question. Am I clear on this? So to go to on the question, I will require a flight plan. So give me a plan using chart number 6 today. You can use any chart, whatever you want, but do let me know that which chart you are using. Who is going to give me a plan then? Mm-hmm. Either of you can go ahead with the flight plan. Give me a सर plan quick. वर्जन 2 वाला है ना? ठीक है. Go ahead with chart number 6. ओके. चेन्नई टावर. No, this is flight plan. Who is asking for tower? सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेकली. Okay. आई फ्लाई 642 I बोइंग fly. 737. No, आई sorry, फ्लाई didn't get you. 642 ठीक है. अच्छा. बोइंग 737. हम्म. वेग टर्बुलेंस मीडियम. ठीक है. चेन्नई टू नागपुर. Okay. सर ये वाला फ्लाइट रूल कौन सा होगा? You can assume any, whatever you want. Up to you. ठीक है. Zulu, Yankee, IFR, VFR. IFR. Hmm. अल्टरनेट एरोड्रोम विशाखापत्तनम. ठीक है. क्या होगा विशाखापत्तनम का लोकेशन डेजिग्नेटर? वेक्टर ऑस्कर. वेक्टर जुलू. हाँ. Is that Oscar? Look at the chart again. Victor Oscar or Victor Echo? इको इको वेक्टर इको. Go ahead next. तो साउथ की साइड आता है ना? You cannot question the chart. जैसा दिया हुआ है वैसा ही आंसर करना है. ठीक है. वेक्टर इको वेक्टर जुलू. स्टैंडर्ड इक्विपमेंट. फ्लाइट लेवल शेड्यूल. Flight level scheduled. Type of flight will be scheduled. टाइप ऑफ फ्लाइट शेड्यूल. टाइम 12:00. What is the time? 12:00. 12:00. 12:00. Very good. Next. रूट
route alpha 465 x XOPOX. Why does it require to mention Jopox? Why does it require to mention? क्या है उधर Jopox पे? मेंशन करने की जरूरत नहीं है सर, ये तो एक ही लाइन जा रहा है। विशाखापत्तनम। वेरी गुड। विशाखापत्तनम। हाँ, फिर नवंबर नवंबर 877। हाँ, नवंबर 877। ठीक है, नागपुर। ठीक। फ्लाइट लेवल 210। अदर इंफॉर्मेशन जनरल फ्लाइट। चलो, एनी अदर इंफॉर्मेशन नील, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। Let me review your plan. What you have told. You have told you are operating an aircraft IFLY 642 Boeing 737 with turbulence medium from Chennai to Nagpur under IFR. Alternative Visakhapatnam all equipment standard. Scheduled flight time of departure 1200 at an altitude of 210. Route is Alpha 465 Visakhapatnam November 877 and any other information is nil. Okay, all 13 parameters are there. Now we'll look on the question ki how RVSM thinks actual works. Okay, for that I will require this flight level to be changed to flight level 350. Okay, 210 is not an RVSM airspace, so I am changing the flight plan to make it 350. Okay, now question will be similar as to position report, but the condition will be mentioned which will take you to the RVSM thing. How that looks, have a look. You are, just a sec, you are overhead Jopox, ऐसा रहेगा क्वेश्चन. You are overhead Jopox. Your primary altimeters या primary altimeter fails. अब देखो, जैसे आपका प्राइमरी अल्टीमीटर फेल हुआ मीन्स यू आर गोइंग टू नॉन कंप्लाई विद द आरवीएसएम. कोई भी एक इक्विपमेंट फेल होता है तो आपका आरवीएसएम तुरंत में नॉन कंप्लायंस हो जाता है. सो इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ आरवीएसएम यू विल रिक्वेस्ट एन अल्टीट्यूड विच इज अ नॉन आरवीएसएम एयर स्पेस. तो आपको तुरंत 35,000 फीट छोड़ के 29,000 के नीचे आना है. डन. So that call you are going to ask. Very simple, and this is no any complicated call here. So just have a look. आपको समझ में आएगा बहुत easily. Have a look how this call can go. Over Jopox, whom to call? Who is going to say? Chennai control. Chennai control. I fly 642 on 118.9er. Boeing 737 IFR Chennai to Nagpur. Current position overhead Jopox. Radial 215 Alpha 465 flight level 350 time now 1250. अब देखो कंडीशन क्या है कि आपका प्राइमरी अल्टीमीटर फेल हो गया, मतलब आप आरवीएसएम से नॉन कंप्लाई हो गए. तो इसको कैसे मेंशन किया जाता है? अनेबल आरवीएसएम. कुछ भी स्पेशल सोचने की बोलने की जरूरत नहीं है. अनेबल आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट्स, बस.
यही एक इसका स्टैंडर्ड टर्म है। अनेबल आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट्स, नथिंग स्पेशल। इक्विपमेंट खराब हो गया, हम इसी के कारण आरवीएसएम में फ्लाई नहीं कर पाएंगे। अनेबल आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू नहीं बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे ड्यू, DUE। अनेबल आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट्स। भले क्वेश्चन में रहे आपका ट्रांसपोंडर फेल हो गया, आपका अल्टीमीटर फेल हो गया, आपका ऑटो पायलट फेल हो गया, या आपका टीकैस फेल है, कुछ भी है, हम इक्विपमेंट का नाम नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे अनेबल आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट्स। तो भैया अब क्या चाहते हो? रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 270 for further flight. I fly 642. See how simple this question is? Why I had requested 270? Why not 280 or 260? Because we were on a odd altitude when we were in RVSM. So exit we had demanded another odd altitude. This is the semicircular requirement. समझ में आया सबको? Yes, no, anything? Is this clear? यस सर, क्लियर। सर इसमें वुड लाइक ठीक है, टू, यस सर, इसमें बोलो ऐसा नहीं ले सकते परमिशन? बोलो बोलो, वुड लाइक, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। आपको इसका ऑल्टरनेट मेथड चाहिए? यस अवेलेबल। वुड लाइक टू, ठीक है, वुड लाइक टू डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 270, रिक्वेस्ट परमिशन, आई फ्लाई 642, बोथ आर ऑप्शन अवेलेबल विद यू। बट देखो, एक रिक्वेस्ट से अपना काम बन गया ना, सो व्हाई टू टेक लेंथी सेंटेंसेस? अप टू यू, whatever you like. This is also a good answer, this is also a good answer. ठीक है? सर सर इसका रेडियल कितना लिया था आपने? तभी मैंने फ्लाइट रिपोर्ट में सबसे पहले रेडियल ही बताया। नाउ हैव अ लुक। आप रेडियल, you mean to say कि it should be 035, right? As per your understanding, it should be very good, nice. Now have a look. We are far from Chennai and we are close to Visakhapatnam over Jopox. So in a straight line, if this is a radial, ठीक है, make an xy axis. If this is a radial of 035, on another end it should be opposite. 035 इसका चेन्नई के रेस्पेक्ट में है, but we are going to Visakhapatnam. Here over Visakhapatnam, अगर हम इसके रेडियल को एक्चुअल में देखें, then it should be 215, 180 degree opposite from each other. So 180 degree, if we add from 035, it will become 215 degree. Isn't it? देख रहे हो? सेम रेडियल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, जो बॉक्स के पास लिखा हुआ रहता तो क्या लिखा हुआ रहता? 215. That I had calculated. Understood? कैसे समझ में आएगा सर, कैलकुलेट करना होगा तो? हाँ, जब आप रेडियल रिपोर्ट करने जाओगे ना, दैट टाइम यू विल ऑब्जर्व कि रेडियल तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, तो निकाल के बताओ। जहां पे आपको इन आरटी वट एवर द पैरामीटर्स वी आर यूजिंग, व्हाट वी आर सेइंग कि अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, देन वी नीड टू से इट हाइपोथेटिकली। इफ योर हाइपोथेटिकल डाटा इज रियलिस्टिक, इट इज वेल एंड गुड। अब देखो, रेडियल चेन्नई के रेस्पेक्ट में तो दे दिया, बट सेम रूट का रेडियल विशाखापत्तनम के रेस्पेक्ट में दिया नहीं, और हम चेन्नई से कितना दूर आ चुके हैं? जोपॉक्स। तो अब हम अगर चेन्नई के रेस्पेक्ट में रेडियल बताए, इट विल लुक अनरियलिस्टिक. सो वी नीड टू रिपोर्ट द रेडियल इन रेस्पेक्ट विथ विशाखापत्तनम. व्हेन वी रीच टू विशाखापत्तनम, वी हैव फाउंड कि यहाँ तो रेडियल ही नहीं दिया है, तो इसका रेडियल कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पे अगर एक एंगल है 90, तो दूसरा क्या होगा? 270. हाउ? प्लस 180 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पे है 035, 035, उसके अपोजिट एंड पे रेडियल क्या होगा? एड 180, इट विल बिकम 215 डिग्री. अंडरस्टूड नाउ?
हाँ सर, मतलब अपोजिट होगा तो 180 डिग्री को प्लस करना होगा। ऑलवेज सपोज यू वेयर ओवर लैरिक, यहां पे आप हो इस पॉइंट पे, एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स पोर्ट ब्लेयर, ये वाला एरो। अब देखो, जब आप अपना पोजीशन रिपोर्ट करोगे ऑन लैरिक, ना यहाँ पे कोई रेडियल दिया है, ना इधर दिया है, ना इधर दिया, ना इधर दिया, तो अब इस पोजीशन पे अपना आप रेडियल कैसे रिपोर्ट करोगे ओवर लैरिक? यू आर गोइंग टुवर्ड्स दिस, हाउ यू विल रिपोर्ट योर रेडियल? अगर कहीं पे रेडियल नहीं दिया हुआ है तो हम उस पॉइंट को मानेंगे सेंटर, जहां पे हम एक्चुअल अभी पोजीशनड है, वहां पे ड्रॉ करेंगे एक एक्स वाई एक्सिस, करेक्शन, ये एक्सिस होगा एक्स, ये हो गया वाई। अब देखो, पहला क्वाड्रेंट 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट 180, so this line where if we are flying on papa 628, so somehow papa 628 will become 90 और 180 के बीच में 135 या 140 या 145, इसी बीच के आसपास कुछ होगा, राइट? अगर आप एज्यूम करोगे, इफ यू आर नॉट परफेक्ट इन कैलकुलेशन, तो 90 और 180 के बीच में आधा तो है ना ऑलमोस्ट ये, तो 90 और 180 का मिड क्या होगा? 135 या 145, 140, 130। इन चारों पांचों रेडियल में से आप कुछ भी बोलोगे वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा। जरूरी नहीं है कि आप स्केल और प्रोटेक्टर लेके एकदम एग्जैक्ट एंगल निकाल के बताओ, बट अगर आप एक राउंड ऑफ एंगल भी बताते हो, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। इज दैट क्लियर नाउ? हाँ सर। And suppose we are going towards Larik, inbounding Larik, और ये ग्रीन कलर का लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस पे बताना है हमको रेडियल। कैसे बताएंगे? सेम एक्स वाई एक्सिस, 90, 180, 270, 360, so this green line is somehow in the mid of 270 to 360, so it is going to be around 315 degree, 320, 330, 318, 310। आउट ऑफ दिस 4-5 एंगल्स अगर आप कोई एक भी बताओगे तो इस पे चलेगा। वहां पे एग्जामिनर आपको बिल्कुल नहीं बोलेगा कि प्रोटेक्टर से हमको एंगल मेजर करके बताओ। एक राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली एंगल भी आप बताओगे तो दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हम अपना रेडियल बता रहे हैं 45 डिग्री, तब तो वो गलत हो जाएगा। सो इन द क्वाड्रेंट वाइज इफ वी से angle little approximate also, that is acceptable. Is that clear now? रेडियल निकालना इजी है? हाँ हाँ। ठीक। अल्फा जूलियट डेल्टा, इज दैट ओके? Yes, sir. Okay. You are getting tough, let me know please. पक्का ठीक है? हो जाएगा? नहीं सर। नहीं होगा? पक्का। मीन्स क्या? इज दैट टॉपिक क्लियर और इज दैट डाउटफुल? ठीक है, Clear, sir. हो Clear. जाएगा। डन डन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आई होप दिस कॉल हैज बीन नोटेड बाय एवरीवन। आप सबने नोट किया ये वाला कॉल आरवीएसएम का? अफर्म सर। Nothing significant. Yes, sir. Nothing significant in this call, right? Only thing is enable RVSM equipment. तो क्या चाहते हो भैया? I would like to leave RVSM airspace. तो हमने क्या किया? Request flight level 270 या फिर would like to descend flight level 270, request permission. So this is the call for RVSM in standard condition. जब ATC आपके टच में था तब आपने कॉल किया और RVSM का रिपोर्ट किया। नाउ there is a condition when you are in RCF and deviation is required. ध्यान से समझना, there is a condition when you are in RCF and deviation is required. तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम लोग करते हैं डेविएशन एट ऑन, खुद से डेविएट करेंगे, बट दिस डेविएशन विल बी अ पैन पैन कॉल। ठीक है, खुद से डेविएट करेंगे टू कंट्रोल द सिचुएशन, बट दैट विल बी अ पैन पैन कॉल। सो
Just understand the question, how it will go. The question is, you are, ध्यान से देखना, लेंदी क्वेश्चन मैं लिखता हूं बट एग्जाम में हमेशा सिंपल क्वेश्चन रहेगा. पोजीशन रिपोर्ट के बाद करके लिख देगा सब्सिक्वेंट टू प्रीवियस, यू आर अंडर आरसीएफ, लाइक दिस. सो क्वेश्चन इज, you are 20 nautical mile from Docket. Received bad weather warning. आप लोग नोट करो क्वेश्चन. Received bad weather warning over Jopox. You are under RCF. You are under RCF. Take action. क्वेश्चन समझ में आया कि आप जो डोकेट से 20 नॉटिकल माइल बाहर हो, यू हैव रिसीव्ड बैड वेदर वार्निंग जोपॉक्स, टेक एक्शन. बट एट द सेम टाइम यू आर अंडर आरसीएफ, यानी एटीसी से आप बात नहीं कर सकते हो. तो आप क्या करोगे? तो आप ओपन अनाउंसमेंट करोगे. किसको? टू ऑल एयरक्राफ्ट. हाउ दैट विल गो? हैव अ लुक. सब लोग नोट करना है इस कॉल को, बिकॉज दैट इज अ पैन कॉल एंड नीड्स स्पेशल अटेंशन. pan. All aircraft in the vicinity of Jopox. In the vicinity of Jopox. या फिर आप जिस एरिया के नजदीक हो, आपका एरिया क्या है? डोकेट. तो इन द विसिनिटी ऑफ डोकेट. विसिनिटी मतलब होता है आसपास. ऑल एयरक्राफ्ट इन द विसिनिटी ऑफ डोकेट. बोइंग 7th करेक्शन, I fly 642 Boeing 737 IFR Chennai to Nagpur. Negative contact with ATC. Current position 20 DME outbound Docket. Flight level 350 Alpha 465 radial 215. Time now 1245. Deviating at on. Deviating at on. Due bad weather warning over Jopox and negative contact with ATC. Deviating 15 nautical mile right of Alpha 465 will rejoin Alpha 465 over Visakhapatnam. Estimating Visakhapatnam 1300. Revised ETA Nagpur 1415. All exterior lights on. Keep a lookout. Will transmit again at 1255. I fly 642.
देखो कितना लेंदी आंसर है, बट हाउ स्मूथ दिस इज, यू विल बी सरप्राइज टू सी। कुछ भी नहीं है इस आंसर में, बस स्टेप ऑन स्टेप हमने हर चीज को डिस्क्राइब करते चले गए। सबसे पहले शुरू से देखो, दिस इज अ पैन पैन कंडीशन, व्हाई? बिकॉज वी आर डेविएटिंग एट ऑन। So any deviation at on without permission of ATC, that will be a pan call. ठीक है, जब आपके गाड़ी का ब्रेक फेल रहता है तो कहीं एक्सीडेंट कर भी दोगे तो दैट इज नॉट एन बिग इशू। सो आपके गाड़ी का ब्रेक फेल है, मीन्स आपका आरसीएफ है, आपका कॉन्टैक्ट है ही नहीं एटीसी से, तो आपने खुद से डेविएट करने का प्लान किया, तो पैन 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 पैन। ऑल एयरक्राफ्ट किधर? इन द विसिनिटी ऑफ डोकेट या इन द विसिनिटी ऑफ जोपॉक्स। आप जिस एरिया में फ्लाई कर रहे हो उसके आसपास के सारे एयरक्राफ्ट को आप अलर्ट दे रहे हो कि मेरी एटीसी से बात नहीं हो पा रही है, तो मैं खुद से डेविएट कर रहा हूं, सब लोग सचेत हो जाना। ये हमने बेसिकली इस कॉल में कहना चाहा। तो जहां पे आपने लिखा ऑल एयरक्राफ्ट इन द विसिनिटी ऑफ जोपॉक्स, उसके अल्टरनेट में आप लिख सकते हो ऑल स्टेशंस एज वेल। ऑल स्टेशंस इन द विसिनिटी ऑफ जोपॉक्स, चाहे आप एयरक्राफ्ट लिखो या स्टेशन लिखो, ठीक है, बोथ द मेथड, बोथ ऑफ द थिंग इज सेम। सो all aircraft in the vicinity of docket. दिस इज आई फ्लाई 642, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए दिस इज बोल रहा हूं, आपको दिस इज बोलना नहीं है। दिस इज आई फ्लाई 642 विच इज बोइंग 737 एयरक्राफ्ट, IFR फ्रॉम मुंबई टू नागपुर, हम लोग सॉरी IFR फ्रॉम चेन्नई टू नागपुर, हम लोग चेन्नई से नागपुर जा रहे हैं, एंड वी हैव नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद ATC। आवर करेंट पोजीशन इज 20 DME आउटबाउंड डोकेट, डोकेट से 20 नॉटिकल माइल दूर आ चुके हैं। करंट फ्लाइट लेवल 350, अल्फा 465 is our route and our radial is 215, current time 1245, 12:45। दिस इज आवर पोजीशन। अब क्या हुआ भैया? why you have transmitted blind or why you have given a call like this कि all aircraft, this is one of the blind transmission thing। आपने क्यों ऐसे अंधे में तीर चलाया कि सब लोग सचेत हो जाओ? डेविएटिंग एट ऑन, व्हाई यू आर डेविएटिंग एट ऑन? हु परमिट यू? डेविएटिंग एट ऑन ड्यू बैड वेदर वार्निंग ओवर जोपॉक्स, यानी जोपॉक्स के ऊपर मौसम खराब है, तो क्या हो गया? अगर कहीं पे मौसम खराब है तो आप खुद से डेविएट करने के लिए कैपेबल हो क्या? नो, नॉट ओनली बैड वेदर ओवर जोपॉक्स, एक तो बैड वेदर ओवर जोपॉक्स और दूसरा नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद एटीसी, हमारी एटीसी से भी बात नहीं हो पा रही है, तब सब लोग आपके कॉल को एक्सेप्ट करेगा कि अच्छा मुश्किल में है, एक तो एटीसी से भी बात नहीं हो पा रही है, ऊपर से मौसम खराब भी हो गया है, तो चलो अब तुम खुद से डेविएट कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं। सो डेविएटिंग एट ऑन ड्यू बैड वेदर ओवर जोपॉक्स एंड नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद एटीसी, एक तो बैड वेदर दूसरा नेगेटिव कॉन्टैक्ट, हमारे पास कोई चारा नहीं है भैया, आई विल डेविएट एट ऑन। तो क्या डेविएट करोगे? डेविएटिंग 15 नॉटिकल माइल राइट ऑफ अल्फा 465, यानी हम यहां से 15 नॉटिकल माइल राइट ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग अल्फा 465 को फिर ज्वाइन करेंगे ओवर विशाखापत्तनम, तो हमने बता दिया विल रीज्वाइन अल्फा 465 ओवर विशाखापत्तनम, यानी जोपॉक्स को डेविएट करके डायरेक्ट विशाखापत्तनम पहुंच जाएंगे। तो एस्टिमेटिंग विशाखापत्तनम जो आपका अपकमिंग ज्वाइनिंग पॉइंट है उसका एस्टिमेट क्या है? उसका एस्टिमेट है 13 बजे, यानी अभी हो रहे हैं 12:45, हम लोग 15 मिनट बाद विशाखापत्तनम पहुंच जाएंगे रूट डेविएट करके। डन। आवर एस्टिमेट इज रिवाइज्ड नाउ, सो रिवाइज्ड ETA नागपुर 1415, कोई भी टाइप का डेविएशन हो ETA हमेशा रिवाइज्ड ETA 1415, 2:15 पे हम नागपुर पहुंचेंगे। ऑल एक्सटीरियर लाइट्स ऑन, दिस इज द चेतावनी, वार्निंग, हमारे सारे एक्सटीरियर लाइट्स ऑन है, कीप अ लुकआउट, नजर बना के रखो। हम लोग फिर से कॉल देंगे, कब? 12:55 पे। क्यों? क्योंकि हम अपने से डेविएट कर रहे हैं, सो आई विल मेक श्योर कि कोई दूसरा एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम में नहीं आए, सो आई विल ट्रांसमिट अगेन एट 1215, 10 मिनट बाद। क्लियर?
Is that clear now? Yes, sir. Yes, sir. Aparomio kilo? Yes, sir. ठीक है. So give me a second. I need to pick one call. I'll simply join after 1 minute. Sorry for that. Am I audible to all? Or still I'm on hold? Am I audible to everyone? Alpha Juliet Delta, am I audible? Yes, sir. So, this thing is the standard format of reporting when you are deviating at on. ठीक है, आप आपने खुद से deviate किया because of bad weather. So this is the condition deviation at on. I hope कि आप सबने इसको नोट डाउन किया होगा, right? Yes, sir. तो चलो अब बताओ, हमने एक इसमें वार्निंग दी कि ऑल एक्सटीरियर लाइट्स आर ऑन. तो आप बताओ सबसे पहले एयरक्राफ्ट में एक्सटीरियर लाइट्स होते कौन कौन से हैं? बीइंग एन इंजीनियरिंग कैंडिडेट दिस में बी आस्क्ड इन पार्ट 2 वेरी वेल. कौन कौन से लाइट होते हैं एयरक्राफ्ट में पोजीशन एक्सटीरियर में? बताओ. बीकन लाइट, ठीक है, फिर लोगो लाइट भी तो होते हैं, फिर नेविगेशन लाइट और पोजीशन तो सेम होते हैं, फिर नहीं बिल्कुल सेम नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. फिर टैक्सी टोइंग लाइट भी तो लैंडिंग गियर में लगे रहते हैं ना, नोज रनिंग. टैक्सी लाइट्स, ठीक है, टैक्सी लाइट्स या लैंडिंग लाइट्स. वेरी गुड. हाँ. व्हाट एल्स? फिर रडार में एक कोई तो लाइट होते हैं. किधर होते हैं? वो व्हाइट कलर का लाइट होते हैं ना रडार किधर में. किधर? रडार में लाइट. हाँ. दैट इज पोजीशन लाइट. हाँ, येलो या व्हाइट कलर का. हाँ. रडर में नहीं, टेल सेक्शन में. So now have a look on aircraft structure. This is one of the aircraft that you are having. ये टी टेल वाला एयरक्राफ्ट हमने बनाया. चलो, एंड दिस इज द विंग. अब देखो, नेविगेशन लाइट लेफ्ट साइड में कौन से कलर का होता है? रेड कलर. रेड कलर. राइट साइड में? ग्रीन कलर. ग्रीन कलर. सेम नेविगेशन का ही एक पार्ट होता है पोजीशन लाइट इन द टेल सेक्शन. किस कलर का होता है? व्हाइट कलर. व्हाइट या येलोइश. ठीक है, मतलब व्हाइट ही रहता है जनरली, बट अगर फिलामेंट टाइप है तो येलो दिखता है. सो दिस इज व्हाइट कलर. डन. ये व्हाइट कलर ही होता है. अगर आपसे कोई पूछे तो आप व्हाइट ही बताना, लेकिन व्हाइट कलर मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए येलोइश यूज किया. नाउ एयरक्राफ्ट, हाँ व्हाइट ही होते हैं. ठीक है, व्हाइट ही होते हैं, बट मैं यहाँ पे व्हाइट कैसे दिखा पाऊंगा? व्हाइट पे व्हाइट चलेगा नहीं ना. दैट्स व्हाई आई हैड इंडिकेटेड विद येलो हेयर. नाउ इन द विंग टिप ओनली, ठीक है, देयर इज वन मोर लाइट. उसको बोला जाता है रिकॉग्निशन लाइट. वो येलो कलर के होते हैं, या फिर वो भी जनरली एम्बर या येलो कलर के होते हैं. रिकॉग्निशन किस कलर के होते हैं? वो व्हाइट. हाँ सर, व्हाइट स्ट्रोब लाइट होता है वही. नहीं, आई एम सेइंग अबाउट अनदर. 3 टाइप के लाइट होते हैं आपके विंग में. एक तो होता है नेविगेशन, दूसरा होता है स्ट्रोब. स्ट्रोब जो कि फ्लैश करता है. ठीक है,
उसके एक कैपेसिटेंस डिस्चार्ज टाइप होता है स्ट्रोब लाइट, वो आपका ब्लिंक करता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर पे। एक और लाइट होता है विंग पे ही, उसको बोला जाता है रिकॉग्निशन लाइट। ठीक है, 3 टाइप के लाइट होते हैं विंग पे। रिकॉग्निशन लाइट वो आपका स्टीडी रहेगा जैसा नेविगेशन लाइट रहता है। सो दैट मे बी अ येलो और व्हाइट इन कलर, रिकॉग्निशन लाइट। डन, ये हो ओके गया सर। रिकॉग्निशन लाइट। देन सर आपका आया रिकॉग्निशन टेक्स्ट। लाइट, हाँ बोलो बोलो। रिकॉग्निशन लाइट कुछ कुछ एयरक्राफ्ट में होता है कि सभी एयरक्राफ्ट में होता है? इट शुड बी इन ऑलमोस्ट ऑल एयरक्राफ्ट। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट योर पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कि एयरबस में है कि नहीं। ठीक है, इट शुड यस बी सर। बट ठीक है, ओके सर। डिपेंड्स, होने चाहिए। मे भी नाउ नहीं है सर एयरबस में। हाँ, एयरबस में भी नहीं हो। ठीक है, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, आई एम नॉट एन इंजीनियर ऑफ एयरबस, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट रिकॉग्निशन लाइट भी होता है। देन इट कम्स लैंडिंग लाइट। लैंडिंग लाइट आपके लैंडिंग गियर में लगे रहते हैं, लैंडिंग लाइट और टैक्सी लाइट। ठीक है, या फिर लैंडिंग लाइट कई बार विंग्स में भी लगे होते हैं, या फिर इन द बेली सेक्शन, विंग्स के नीचे, सॉरी फ्यूजलाज के नीचे। तो यहाँ पे आपके लैंडिंग लाइट्स लगे होते हैं या टैक्सी लाइट्स, लैंडिंग गियर में, विंग्स पे, या बेली सेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट जस्ट बिलो टू द फ्यूजलाज, यहाँ पे आपके होते हैं लैंडिंग लाइट्स। डन। अब देखो, फिर आपने जो बोला बीकन या एंटी कोलिजन, वो लगे होते हैं आपके अबव और बिलो। ठीक है, अगर वो एंटी कॉल लाइट है, एंटी कोलिजन लाइट है, तो वो रेड कलर का होगा और वो फ्लैश करेगा। बट अगर वो बीकन लाइट है तो वो येलो कलर का होगा। ठीक है, तो बीकन और एंटी कोलिजन दोनों टॉप एंड बिलो ऑफ द फ्यूजलाज लगे होते हैं। एंटी कोलिजन और बीकन लाइट सेम है, कलर का डिफरेंस है। बीकन लाइट येलो कलर का, एंटी कोलिजन रेड कलर का। लोगो लाइट आपका रडर पे जो आपके कंपनी का लोगो बना होता है, ठीक है, जिस भी कंपनी का आपका एयरक्राफ्ट है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल स्टेबलाइजर पे आप मान लो कोई ना कोई लोगो बनाए हुए हो, तो वहां पे लाइट फ्लैश करेगा ताकि आपके कंपनी का लोगो अच्छे से दिख पाए। अगर वो टी टेल है तो ये जो देखो दो ब्लू कलर का मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे लगे होंगे लोगो लाइट। अगर वो कन्वेंशनल टाइप का टेल है तो कहीं ना कहीं पोजीशन लगा होगा कि आपके लोगो पे वो फ्लैश करे। तो इतने सारे टाइप के हो गए आपके पास लाइट। इसके अलावा विंग का होता है आइस इंस्पेक्शन लाइट। यस सर, राइट, विंग इंस्पेक्शन लाइट या इंजन इंस्पेक्शन हाँ लाइट। हाँ, विंग्स या इंजन इंस्पेक्शन लाइट होता है फॉर आइस डिटेक्शन, आइस चेक करने के लिए। उसको जनरली बोलते हैं आइस इंस्पेक्शन लाइट या फिर विंग्स इंस्पेक्शन लाइट। डन। तो ये सब यस होते हैं सर। लाइट। जनरली व्हेन यू आर इन फ्लाइट तो आपके बीकन लाइट हमेशा ऑन रहेंगे, नेविगेशन हाँ लाइट सर। हमेशा ऑन रहेंगे, स्ट्रोब लाइट हमेशा ऑन रहेंगे, और पोजीशन लाइट ऑन रहेंगे। तो जब सारे लाइट हम ऑन करके चल ही रहे हैं, देन ऑल एक्सटीरियर लाइट्स ऑन का क्या मतलब हो गया? ऑल एक्सटीरियर लाइट्स ऑन का मतलब हुआ कि जनरली हमारा लोगो लाइट डे सिनेरियो में ऑन नहीं रहता है। तो अगर हमारा लोगो लाइट ऑफ है तो हम ये भी ऑन कर देंगे। टैक्सी लाइट हम निकाल के ऑन नहीं करने जाएंगे क्योंकि हमारा लैंडिंग गियर एक्सटेंड हो जाएगा, तो टैक्सी लाइट यस ऑफ ही रहेगा। आइस इंस्पेक्शन लाइट ज्यादा से ज्यादा ऑन कर देंगे और रिकॉग्निशन लाइट ऑन कर देंगे। सो जब हम बोलते हैं ऑल एक्सटीरियर लाइट्स ऑन, इसका मतलब जो नेसेसरी लाइट्स हैं वो तो ऑलरेडी चालू ही हैं। एडिशनली हम लोगो लाइट, रिकॉग्निशन लाइट, इन दोनों को भी ऑन कर देंगे ताकि सबको अच्छे से दिख पाए। या फिर अगर हमारा लैंडिंग लाइट विंग्स पे है तो लैंडिंग लाइट्स भी ऑन कर देंगे ताकि हमारा डाइवर्जन, हमारा डेविएशन सबको दिख जाए। ठीक है, सो इन पार्ट वन एग्जामिनर में आस्क कि सारे लाइट्स तो एयरक्राफ्ट के ऑन ही रहते हैं, तो ऑल एक्सटीरियर लाइट्स ऑन कर दोगे, इसका क्या मतलब हुआ? So you mean to say कि sir there are certain lights which are available in exterior of the aircraft, but they are not always on. So to have a better lookout for other aircraft, I will keep that on also. So what are those light? Logo, wings inspection light, or landing lights or taxi light, if those are available on wings or fuselage. क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है,
So we'll have a look on the next question type. अभी हमने क्या देखा कि deviating at on when there is a bad weather. Now we'll have a look when deviating at on अनेबल RVSM में, कि आप RVSM एरोस्पेस में मस्त फ्लाई कर रहे थे और RCF कंडीशन था। तो एक तो हो गया RCF कंडीशन, दूसरा आपका ट्रांसपोंडर भी खराब हो गया, तब क्या करोगे? हैव अ लुक। यू आर ओवरहेड डोकेट। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। यू आर ओवर डोकेट, यू आर ओवर डोकेट एंड ट्रांसपोंडर्स फेल, transponders failed. You are under RCF. Take action. सेम ये भी पेन जाएगा और खुद से डेविएट करेंगे, लेकिन आरवीएसएम में डेविएशन का ये मतलब नहीं है कि हम डायरेक्ट उस एरोस्पेस को छोड़ के बाहर आ जाएं अपने मन से, जैसा हम डेविएशन में कर रहे थे ना, बायां दायां करके अपना चेंज कर ले रहे थे। लेकिन आरवीएसएम में डेविएशन का ये मतलब नहीं कि हमारा अगर अनेबल आरवीएसएम हो गया तो अपने आप उस एरोस्पेस को एग्जिट कर लेंगे, नहीं। एग्जिट हम तभी लेंगे जब एटीसी हमसे बात कर पाएगा। बट अगर एटीसी से बात नहीं हो पा रहा है और आरवीएसएम भी फेल हो गया तो क्या हम डेविएट नहीं कर सकते? करेंगे। कितना? एज पर स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर ओनली। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर क्या था? 15 नॉटिकल माइल बाएं दाएं, 500 फीट अप डाउन, 15 डिग्री रेडियली, लेफ्ट या राइट। तो जितना स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमको अलाउ करेगा उतना ही हम डेविएट करेंगे। वेदर डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम 15 नॉटिकल माइल, वेदर डेविएशन कैन गो अप टू 30 to 40 नॉटिकल माइल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो यहां पे हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। हाउ दैट विल गो, हैव अ लुक। अगेन दैट विल बी अ pan कॉल। pan. All aircraft in the vicinity of Docket. I fly 642 Boeing 737 IFR Chennai to Nagpur. Current position flight level 350, Alpha 465, radial 215, time now 1245. Deviating correction. Deviating at on. Deviating at on. Due enable RVSM due equipment. Due enable RVSM due equipment and negative contact with ATC. Deviating via, ठीक है, deviating via 15 nautical mile left of Alpha 465 and will climb 300 feet. And will maintain deviated track, या फिर will fly parallel on deviated track, will fly parallel on deviated track. All exterior lights are on.
keep a lookout. Will transmit again at 1255. I fly 642. देखो, very simple. We have called with pan क्योंकि deviating at on जितने सारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो in the vicinity of Docket, we are I fly 642, that is Boeing 737 aircraft, IFR Chennai to Nagpur. Our current position is flight level 350. Alpha 465 is our route, radial 215, time is 1245. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी. करंट पोजीशन में वी शुड से ओवरहेड डोकेट. ठीक है, ये बोलना था. दैट आई मिस्ड. कैसे पता चला हमको? जब हमने अपना कॉल रिव्यू किया. दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिव्यू. Overhead docket, flight level 350, Alpha 465, radial 215, time now 1245. Deviating at on, खुद से deviate कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि unable RVSM due equipment and negative contact with ATC. ATC से भी बात नहीं हो पा रही है और RVSM equipment भी फेल हो गया. तो क्या चाहते हो भैया? Deviating via 15 nautical mile left of Alpha 465 and will climb 300 feet. 300 फीट वर्टिकल सेपरेशन भी करूंगा और 15 नॉटिकल माइल बाएं साइड डेविएट कर रहा हूं. ठीक है, फिर विल मेंटेन डेविएटेड ट्रैक और विल फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक. क्यों? इसमें आप रीजॉइन वगैरह नहीं कर सकते. वेदर के केस में आप रीजॉइन कर सकते थे, आरवीएसएम के केस में आपको रीजॉइन नहीं करना है. क्यों? बिकॉज यू डोंट नो after certain distance which aircraft is flying in your close proximity. कौन सा एयरक्राफ्ट आपके कितने क्लोज है आपको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि आपका ट्रांसपोंडर फेल हो चुका है. तो आरवीएसएम के केस में जब आप डेविएट करते हो खुद से तो आप कुछ नहीं करोगे. आप अपने डेविएटेड ट्रैक से जो आपने डेविएशन प्लान किया उतना डेविएट करोगे, लेटरली एज वेल एज वर्टिकली. यहां पे दोनों डेविएट करना है. वेदर के केस में आप करते थे आइदर वर्टिकली और ओनली लेटरली, या फिर दोनों में से आप फ्री थे कि खाली लेटरल डेविएशन भी करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं या खाली वर्टिकल डेविएशन भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं. बट इन केस ऑफ आरवीएसएम यू नीड टू डू बोथ लेटरल एज वेल एज वर्टिकल, क्योंकि आप एक कॉम्पैक्ट एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हो. तो लेटरल 15 नॉटिकल माइल करना था, हमने 15 के 15 ले लिए. अब वर्टिकल में हमारे पास बेनिफिट है कि अप टू 500 फीट वी कैन गो, बट वी हैव चूजन ओनली 300 फीट. दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग. तो इतना डेविएट करके हम सिर्फ इसी ट्रैक पे पैरेलली फ्लाई करेंगे, अपने मन से एग्जिट नहीं लेंगे या अपने मन से वापस रीजॉइन नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसी डेविएटेड ट्रैक पे आपको पैरेलली फ्लाई करना है. कहां तक? अनंत काल तक. ठीक है, अनंत काल तक इन द सेंस कि जब तक एटीसी दोबारा आपसे कांटेक्ट में नहीं आएगा या फिर आप अपने डेस्टिनेशन के नजदीक नहीं पहुंच जाओगे तब तक आप इसी फ्लाई पाथ को मेंटेन करोगे. नो ऑल्टरेशन, स्पेशली इन आरवीएसएम. ठीक है, दूसरे रूट में आप फ्री थे, रीजॉइन कर लो, दोबारा से नजदीक आ जाओ, वापस टच में आ जाओ, बट हियर नो. सो वी विल फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक. हम अपने डेविएटेड ट्रैक को मेंटेन करेंगे. All exterior lights on, keep a lookout. Will transmit again at 1255. Is that clear now? समझ में आया सबको? हाँ सर. Alpha Juliet Delta, is this clear? यस सर. सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं ब्लाइंड ट्रांसमिटिंग? क्या फायदा? क्या फायदा? आप खाली ब्लाइंड ट्रांसमिशन दे दोगे तो डेविएटिंग एट ऑन कहाँ करोगे? खुद से डेविएट कर रहे हो ना, तो खाली ब्लाइंड ट्रांसमिशन से काम नहीं चलेगा. आपको सारे एयरक्राफ्ट को वार्निंग देना है. ऑल एयरक्राफ्ट. अगर आपको मन है, चलो आपको मन है कि आपको ब्लाइंड ट्रांसमिशन भी बोलना है तो यहां बोलो all aircraft in the vicinity of Docket, I fly 642 transmitting blind on.
चेन्नई का फ्रीक्वेंसी 118 डेसिमल लाइनर। अगर आपको मन हो तो आप ये बोलो, नहीं भी बोलोगे नॉट अ बिग डील। ठीक है, ओके सर, हाँ यही था कि अगर ना बोले तो कुछ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड ट्रांसमिशन से ज्यादा बड़ा चीज आपने बोल दिया। क्या? पैन पैन। सब लोग सचेत हो जाओ। इज दैट ओके एवरीवन? समझ में आया ये वाला कॉल? यस सर सर। अगर हाँ, सर अगर सब कुछ फेल हो जाए, ट्रांसपॉन्डर वगैरह सब फेल है, तो फिर वो टेक ऑफ मतलब लैंडिंग करेगा कैसे? ट्रांसपोंडर का लैंडिंग से क्या लेना देना है? ट्रांसपोंडर लैंडिंग के लिए आपको क्या चाहिए? वीओआर, जीपीएस, आईएलएस, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है ना। आपका वीओआर थोड़ी फेल हुआ है, तो आप किसी स्टेशन के अगर डेस्टिनेशन के नजदीक जाओगे तो आपके एफएमएस में तो बताएगा कि यू आर क्लोज टू योर डेस्टिनेशन। ट्रांसपोंडर फेल हुआ तो आपका टीकैश काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट आपके कितने नजदीक आ रहे हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपने वो आपने बोलो बोला बोलो। ना कि एटीसी से भी बात नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेरी गुड। एटीसी से बात नहीं हो पाएगा अप टू सर्टेन कंडीशन, या हमेशा। और चलो, अगर हमेशा के लिए आपका रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो गया तो आपको फिर पता चला कि आप विशाखापत्तनम के नजदीक आ गए। डन। अब डेविएशन एट ऑन करके आप अपने फ्लाइट प्लान से चिपके रहेंगे। ठीक है, एक बार जब आपने इस रूट को चेंज कर लिया तो आप अपने फ्लाइट प्लान से स्टिक रहेंगे, चिपके रहेंगे हमेशा। ताकि ये इंश्योर करता है हमेशा एटीसी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट कांटेक्ट में नहीं है और अगर वो अपने फ्लाइट प्लान को फॉलो करते हुए फ्लाई कर रहा है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो अगर आपका हमेशा के लिए आरसीएफ हो गया तो डेविएशन एट ऑन करिए और अपने फ्लाइट प्लान पे रिटर्न आइए। हाँ, उस केस में कभी अगर आरवीएसएम एयरोस्पेस छोड़ने की भी जरूरत पड़े तो किसी एयरपोर्ट के नजदीक आके आरवीएसएम एयरोस्पेस को डंप कर दो। विशाखापत्तनम के नजदीक आके आरवीएसएम एयरोस्पेस छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी किसी व्यूआर के ऊपर आरवीएसएम एयरोस्पेस को डिसेबल्ड किया जाता है। वहां पे क्रॉसिंग फ्लाइट्स रहते हैं या फिर वहां पे अराइवल और डिसेंट फ्लाइट रहते हैं, तो उस एयरोस्पेस के आसपास आरवीएसएम ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, तो किसी न किसी एयरपोर्ट के आसपास आके आपको आरवीएसएम डंप करना है, मतलब आप नीचे आ जाओ, क्योंकि वहां सारे एयरक्राफ्ट नीचे आ रहे होंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ओके सर। सो दिस इज द केस ऑफ आरसीएफ। आरसीएफ हमेशा कहता है कि अगर आप कम्युनिकेशन फेल हो गया तो जैसा फ्लाइट प्लान आपका अप्रूव हुआ है आप उसको फॉलो करो। अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो आप दोषी नहीं माने जाओगे, क्योंकि आप अपने फ्लाइट प्लान को फॉलो कर रहे थे। नाउ दिस इज द केस व्हेन वी हैड डेविएटेड एट ऑन और आरवीएसएम का कंडीशन था। नाउ इसका अगला कंडीशन रहेगा कि एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट ये भी रहेगा, और इसमें दो कंडीशन। एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट बट आरवीएसएम नॉट रिकवर्ड। एक चीज, मतलब आरवीएसएम अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इक्विपमेंट खड़ा भी चल रहा है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को देखते हैं। एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट बट आरवीएसएम नॉट रिकवर्ड, तो एटीसी को क्या बोलेंगे? एटीसी को हम बताएंगे कि हमने खुद से डेविएट कर लिया था भैया, अब मैं चाहता हूं कि वापस अपने फ्लाइट प्लान पे आ जाऊं और उसके लिए हमको आरवीएसएम को छोड़ के दूसरे एल्टीट्यूड पे जाना है। ये हम एटीसी को बोलेंगे। एटीसी को जब एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट, तो एटीसी को दो बात बोलेंगे कि हमने खुद से डेविएट कर लिया था ड्यू टू दिस एंड दिस रीजन, नाउ आई वांट दिस सॉल्यूशन एडिशनली। सो हाउ दैट कैन गो, हैव अ लुक। आंसर दूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे ये कॉल जाएगा। एटीसी कॉन्टैक्ट में आ गया ना, ओवर जोपॉक्स। ठीक है, सो एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट
at 10 nautical mile आउटबाउंड जोपॉक्स। चलो जोपॉक्स के आसपास आके आपका एटीसी कांटेक्ट में वापस आ गया। अब देखो कैसे जाएगा कॉल। स्टिल दैट विल बी अ चेन्नई कंट्रोल ओनली। ठीक है, दैट विल बी चेन्नई कंट्रोल ओनली। चेन्नई कंट्रोल। नाउ यू मे एज्यूम कि हम बार बार चेन्नई कंट्रोल क्यों ले रहे हैं और कहां तक चेन्नई कंट्रोल लेंगे, जबकि चेन्नई का कंट्रोल बाउंड्री तो यहीं पे है। सी वी कैन टेक कोलकाता कंट्रोल बट दिस इज सो फार, तो नियरेस्ट कंट्रोल को हमेशा अप्रोच करेंगे। वंस वी क्रॉस द विशाखापत्तनम विल स्टार्ट टेकिंग मुंबई कंट्रोल, देन विल लीव द चेन्नई कंट्रोल। तो अभी तक जोपॉक्स विशाखापत्तनम तक हम चेन्नई कंट्रोल को ही मान के चलते हैं। सो हाउ दैट कॉल कैन गो, हैव अ लुक आउट। कंडीशन क्या है, एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट बट आरवीएसएम ठीक नहीं हुआ है। तो चेन्नई कंट्रोल आई फ्लाई 642 on 118.9er Boeing 737 IFR Chennai to Nagpur. Current position on deviated track। अब देखो करंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक, क्योंकि हम डेविएट कर चुके हैं 15 नॉटिकल माइल। किस साइड डेविएट किया था, लेफ्ट या राइट? लेट मी सी, लेफ्ट। करंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट ऑफ अल्फा 465। फ्लाइट लेवल 353, क्योंकि 300 फीट हमने गेन भी किया था। रेडियल 215। टाइम नाउ 1250 10 DME आउटबाउंड जोपॉक्स। ये हो गया हमारा करंट पोजीशन, जिसमें हमने डेविएटेड ट्रैक रिपोर्ट किया कि करंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक। पिछले क्वेश्चन में हमने डेविएट किया था, तो करंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट ऑफ अल्फा 465, फ्लाइट लेवल 353, क्योंकि 300 फीट गेन किया था हमने। रेडियल 215, टाइम नाउ 1250 10 DME आउटबाउंड जोपॉक्स। हैड डेविएटेड एट ऑन, एटीसी आपसे पूछेगा ना कि व्हाई यू आर ऑन डेविएटेड ट्रैक, तो हैड डेविएटेड एट ऑन, खुद से डेविएट किया था। हैड का यूज करना सब लोग अच्छे से समझेंगे। हैड बिकॉज पास्ट टेंस में आपने डेविएट किया था, तो हैड डेविएटेड एट ऑन ड्यू नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ एटीसी एंड एयरक्राफ्ट अनेबल आरवीएसएम। एक तो आरवीएसएम खराब हो गया और एटीसी से भी बात नहीं हो पाई थी। तो अब क्या चाहते हो, रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 270 फॉर फर्दर फ्लाइट एज आरवीएसएम नॉट रिकवर्ड। आरवीएसएम अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। सो रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 270 फॉर फर्दर फ्लाइट आई फ्लाई 642। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको बोलना है तो आप बोलो वुड लाइक टू डिसेंड। ठीक है, वुड लाइक टू डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 270 एज आरवीएसएम नॉट रिकवर्ड। रिक्वेस्ट क्लियरेंस और रिक्वेस्ट परमिशन, जो भी बोलने का मन हो। आई फ्लाई 642। क्लियर? Is that clear to you? हाँ सर। Everyone, let me explain the call again. What we have given, हमने सबसे पहले पोजीशन रिपोर्ट बताया कि वी आर ऑन डेविएटेड ट्रैक। क्यों भैया, क्यों डेविएटेड ट्रैक पे?
had deviated at on. क्यों क्या deviate खुद से? Due negative contact with ATC and aircraft unable RVSM. दोनों कंडीशन हमको मजबूर कर दिया कि हम डेविएट करें. सो अब क्या चाहते हो? अब क्यों कॉल कर रहे हो हमको? We request flight level 270 for further flight as RVSM not recovered. Would like to descend to flight level 270, RVSM not recovered. Both are option available with you. Have you noted the question then? Answer then? समझ में आया ये वाला कॉल? affirm sir. ठीक है. So we'll see one more condition. ATC back in contact and RVSM recovered. ठीक है. अब क्वेश्चन है ATC back in contact and RVSM recovered. अब क्या करोगे? RVSM ठीक हो गया तो वापस अपने फ्लाइट प्लान पे जाने का रिक्वेस्ट कर लेंगे. डन. हाउ दैट विल गो? हैव अ लुक. वेरी सिंपल. Chennai control, I fly 642 on 118 decimal liner, Boeing 737 IFR, Chennai to Nagpur. Current position on deviated track, flight level 353.15 nautical mile, left of Alpha 465, radial 21510 DME, outbound Jopox. Time now 1255. Had deviated at on. Had deviated at on. क्यों? Due negative contact with ATC and aircraft unable RVSM. तो अब क्या चाहते हो भैया? क्या चाहते हो हमसे? RVSM correction. Would like to return to flight level 350 and Alpha 465. Aircraft able to fly under RVSM now. Aircraft able to fly under RVSM now. या फिर aircraft able to RVSM now. या फिर RVSM recovered now. यही सब कंडीशन होगा ना. या फिर इन सब के अलावा एक मास्टर स्ट्रोक, एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन. डायरेक्ट छक्का. कुछ भी ये सब बोलने की जरूरत नहीं है. तो आपको इन सब में से जो याद रह पाए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, इन अंडर प्रेशर आप कुछ कुछ स्टेटमेंट भूल सकते हो. तो आपको इन सब में से जो ठीक लगे. सपोज आपको सडनली याद नहीं आया एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एयरक्राफ्ट एबल टू फ्लाई अंडर आरवीएसएम नाउ. बट सबसे सुटेबल वर्ड क्या है? एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन वुड लाइक टू रिटर्न टू फ्लाइट लेवल 350 एंड अल्फा 465. हम लोग अपने पाथ पे वापस जाना चाहते हैं. एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन. रिक्वेस्ट क्लियरेंस. I fly 642. क्या किया हमने? अपना करंट पोजीशन पहले रिपोर्ट किया कि वी आर ऑन डेविएटेड ट्रैक. उसके बाद रीजन बताया कि क्यों डेविएट किया था हमने. अब क्या चाहते हो? अब वी वांट टू रिटर्न टू नॉर्मल फ्लाइट पाथ बिकॉज एयरक्राफ्ट इज एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन. रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन, RNN. Request clearance. I fly 642.
Is that clear? हाँ सर। पक्का? Have you noted down the answer? नोट किया? हाँ सर। Okay. Yes, sir. Now, one more condition. You had deviated because of bad weather. ठीक है, पुराना सिचुएशन आते हैं. And ATC back in contact. अभी तक हमने RVSM वाला देखा. ATC back in contact. तो इसमें भी सिंपल, हमने जो डेविएट किया था खुद से, तो उस टाइम पे खुद से डेविएट कर लिया था और ATC दोबारा से कांटेक्ट में आ गया. यू आर सेम 10 नॉटिकल माइल आउटबाउंड जोपॉक्स. तो उस केस में भी हम सेम ATC को बोल दें कि हमने खुद से डेविएट कर लिया था बिकॉज सो एंड सो, बट नाउ सब कुछ ठीक है. सो आई वुड लाइक टू रीजॉइन आवर ओरिजिनल रूट. सो हाउ दैट कॉल कैन गो, हैव अ लुक. Chennai control. Simple. You have deviated because of bad weather. सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हमने डिस्कस किया था, डेविएशन एट ऑन बिकॉज ऑफ बैड वेदर. जो पॉक्स के ऊपर मौसम खराब था तो आपने खुद से डेविएट किया. ठीक है. ATC बैक इन कॉन्टैक्ट. ठीक है. यू आर ऑन डेविएटेड ट्रैक. चलो 10 नॉटिकल माइल भी नहीं लिखेंगे. यू आर ऑन डेविएटेड ट्रैक. You have deviated because of bad weather. Now ATC back in contact. You are on deviated track. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर. ठीक है. So how this call can go? Have a look. Chennai control. I fly 642 on 118.9er. Boeing 737 IFR Chennai to Nagpur. Current position on डेविएटेड ट्रैक. मेंशन करेंगे कि अभी हम डेविएटेड ट्रैक पर है. क्या है आपका डेविएटेड ट्रैक? फ्लाइट लेवल 353. चलो हमने समझा कि डेविएशन, वेदर डेविएशन में हमने एल्टीट्यूड भी गेन किया, तो 500 फीट उधर गेन किया सपोज. तो फ्लाइट लेवल 353, 15 नॉटिकल माइल राइट ऑफ अल्फा 465, रेडियल 215. Time now 1255. 20 DME outbound जोपॉक्स. करेक्शन, ये वाला मिटा दो. 20 DME आउटबाउंड जोपॉक्स नहीं होगा क्योंकि आप डेविएटेड ट्रैक पे किसी रूट का डिस्टेंस नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इधर लिखा यू आर ऑन डेविएटेड ट्रैक. लेकिन RVSM के केस में हमने लिखा 10 नॉटिकल माइल आउटबाउंड जोपॉक्स. क्यों? क्योंकि आप उस रूट को छोड़ के डायरेक्ट बाहर नहीं चले गए, आप उसी एयर स्पेस को मेंटेन कर रहे हो, तो आपको आसपास का आइडिया लग रहा है. हेयर बिकॉज ऑफ बैड वेदर यू कैन गो बियॉन्ड 15, 20, 30, 40. इस केस में आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस स्टेशन से कितने दूर हो. सो डायरेक्ट इस केस में डेविएटेड ट्रैक पे DME बोलने की जरूरत ही नहीं. सीधा फ्लाइट लेवल और डेविएटेड ट्रैक का इंफॉर्मेशन. 15 नॉटिकल माइल राइट ऑफ अल्फा 465, रेडियल 215, टाइम नाउ 1255. ये हो गया आपका करंट पोजीशन. अब आई बात, क्यों हो आप डेविएटेड ट्रैक पे? हैड डेविएटेड एट ऑन. क्यों किया खुद से डेविएट? ड्यू नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ ATC. ठीक है. ड्यू नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ ATC एंड बैड वेदर वार्निंग ओवर जोपॉक्स. इन दोनों ने हमको मजबूर किया कि डेविएट कर लो. ठीक है. अब क्या चाहते हो? वुड लाइक टू rejoin Alpha 465 at 20 nautical mile inbound Visakhapatnam.
एस्टिमेटिंग अल्फा 465, करंट टाइम क्या है 12:55, 1305, रिवाइज्ड ETA नागपुर 1515, रिक्वेस्ट rejoining clearance iFly 642। देखो, जब भी आप डेविएट करते हो और एटीसी कांटेक्ट में नहीं है तो खुद से डेविएट कर लो, और दोबारा से जब एटीसी कांटेक्ट में आता है तो उसको इन्फॉर्म कर दो कि हैड डेविएटेड एट ऑन बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। तो अब क्या चाहते हो भैया? तो अब हम चाहते हैं कि हम वापस से अपने रूट को रीजॉइन कर लें। ठीक है, तो एटीसी जब भी कांटेक्ट में आएगा आप उसको बताओगे कि हमारा एयरक्राफ्ट अब नॉर्मलाइज हो चुका है, आई वांट टू बैक टू आवर ओरिजिनल ट्रैक। या फिर अगर आपका कंडीशन रिकवर नहीं हुआ है तो आप उसको बोलोगे आई वुड लाइक टू एग्जिट आरवीएसएम एयरोस्पेस। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस व्हाट यू कैन फाइंड व्हेन यू आर डेविएटिंग एट ऑन और व्हेन यू आर इन आरवीएसएम एंड सच थिंग हैपन विद यू। तो एक केस हमने पहले क्या देखा कि आरवीएसएम फेल्स, तो उस केस में आप एटीसी को कॉल करोगे और एग्जिट मांगोगे, आरवीएसएम एयरोस्पेस को छोड़ के बाहर आ जाओ। दूसरा केस कि आप आरसीएफ में थे और आरवीएसएम फेल हो गया, तो क्या करोगे? खुद से डेविएट करोगे, कितना? एज पर स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर, और उसी एयरोस्पेस में कंटिन्यू करोगे। अपने मन से उस एयरोस्पेस को छोड़ के बाहर नहीं आना है, आरवीएसएम में ही आप डेविएटेड ट्रैक पे कंटिन्यू करोगे। तीसरा केस क्या देखा कि आप डेविएट कर चुके हो खुद से और एटीसी कांटेक्ट में वापस आ गया, तो एटीसी को पहले रिपोर्ट करोगे और अपना कंडीशन देखोगे कि क्या आरवीएसएम ठीक हो गया, नो, तो एटीसी को बोलोगे कि हमने खुद से डेविएट किया था बट आरवीएसएम अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, तो आई वांट एग्जिट ऑफ आरवीएसएम एयरोस्पेस। चौथा कंडीशन कि एटीसी कांटेक्ट में वापस आया और आरवीएसएम रिकवर भी हो गया, तो अब क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि ओरिजिनल ट्रैक पे फिर से वापस आ जाए, तो एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन। फिर पांचवा केस हमने देखा कि यू हैड डेविएटेड एट ऑन बिकॉज ऑफ बैड वेदर और एटीसी बैक इन कांटेक्ट। तो एटीसी जब भी कांटेक्ट में वापस आता है हमारा पहला काम होता है उसको रिपोर्ट करना कि हमने भैया खुद से डेविएट कर लिया था। क्यों किए थे खुद से डेविएट तुमने? क्योंकि 2-3 प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम मजबूर हो गए खुद से डेविएट करने के लिए। तो उसके बाद अब क्या चाहते हो? सो वॉट एवर इज योर प्रोबेबल एक्शन, अगर आपका कंडीशन ठीक हो गया है तो अपने ट्रैक पे वापस चले जाओ, बैक टू द ट्रैक। अगर गड़बड़ चल रहा है फिर से माहौल, तो उसी कंडीशन पे मेंटेन करो। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, सो दिस मच कॉल इज मच इनफ। ठीक है, आपका दिमाग पकाने के लिए। Why I am saying this? Because RVSM is little lengthy things. Here you can see in such calls क्या कॉल हो गया। पेन हो गया, ठीक है, एक ही कॉल में देखो, और कितने लंबे लंबे आंसर्स हैं, 15 से 20 पैराग्राफ के आंसर्स हो रहे हैं आपके। एक तो पेन हो गया, दूसरा ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड का भी सिचुएशन एराइज हो गया। ठीक है, पेन ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड का भी सिचुएशन एराइज हो गया, पोजीशन रिपोर्ट है, डेविएशन है। ठीक है, उसके बाद सबको अलर्ट करना भी है, दोबारा से कॉल भी करना है, तो ये सारा कॉल लेंदी हो गया। और ये सब कुछ बहुत इजी है अगर आप स्टेप टू स्टेप हर एक सिचुएशन को सिमुलेट करोगे। अगर आप ये सोचोगे कि इतना सारा कुछ आंसर करना है, इतना सारा कुछ आंसर करना है, तो आप कुछ भी आंसर नहीं कर पाओगे। बट अगर आप ये सोचोगे कि जो भी है हम 1 बाय 1 हर चीज काउंट करवा देंगे, तो आप आंसर कर लोगे। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने पेन करके अपना आइडेंटिफिकेशन दे दिया, तो एक चीज हमने काउंट करवा दिया, क्या? अपनी आईडी, कि हम हैं कौन, अपना आइडेंटिफिकेशन।
दूसरा हमने क्या किया, अपना पोजीशन बता दिया, ठीक है। तीसरा हमने क्रिटिकल सिचुएशन को अनाउंस कर दिया कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ आई। चौथा क्या किया, हमने जो भी एक्शन प्लान बनाया था उसको रिपोर्ट कर दिया। पांचवा, सबको अलर्ट दे दिया। और छठे में कि दोबारा से कब कॉल करूंगा, कॉल खत्म। तो वन बाय वन अगर आप हर चीज को पेपर पे रखोगे, आप हर चीज आंसर कर पाओगे। बट अगर वहीं पे हड़बड़ा जाओगे कि इतना सब कुछ बोलना है, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, फिर कुछ नहीं बोल पाओगे। हो सकता है जब आप इनिशियली आंसर करने बैठो तो आप एक स्मूथ राइम में या एक रिदम में सारे चीजों को नहीं बोल पाओ। हो सकता है पोजीशन रिपोर्ट आप पहले बोल दो या एक्शन प्लान पहले बोल दो। तो इन सारे क्वेश्चंस का कोई ऑर्डर नहीं होता है कि पहले ये बोलेंगे फिर ये बोलेंगे फिर नो। जो मैंने पहले बोलो, चाहो तो पहले डेविएशन प्लान बता दो, फिर आप अपना करंट पोजीशन बताओ। तो अगर कभी जो थर्ड, यहाँ पे मैंने जो थर्ड सिचुएशन में कॉल किया है, अगर आप कभी सेकंड में उसको बोल दो या फोर्थ वाला सेकंड में बोल दिए, तो बिल्कुल ऐसा मत घबराना कि मैंने तो पहले डेविएशन प्लान ही बता दिया, पोजीशन मेरे से मिस हो गया। कुछ भी मिस नहीं हुआ है। कॉल खत्म होने से पहले कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ है। और अगर कॉल आपने खत्म कर भी दिया, फिर भी आपको कुछ भूला भटका याद आ गया, फिर से उस चीज को मेंशन करो और अपना कॉल एक बार फिर से क्लोज करो। तो सबसे पहले मन से फियर ऑफ प्रेशर निकालो कि ये छूट गया, ये मिस हो गया। ठीक है, अल्फा जूलियट डेल्टा, इज दैट ओके? यस सर। बिकॉज टुडे आफ्टरनून आई वाज ऑब्जर्विंग कि सम ऑफ द टाइम यू वेयर अंडर प्रेशर कि ये भूल गया। मेनी ऑफ द टाइम्स यू हैड आस्क्ड कि सर एस्टिमेट्स बताना था पहले, क्रॉसिंग क्लियरेंस बताना था पहले। नो, कोई ऑर्डर नहीं है। आई एम सेइंग वेरी क्लियरली, बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। नो, नथिंग। जब जो दिमाग में आया बोलो। जब तक आपने कॉल क्लोज नहीं किया है तब तक सिचुएशन आपके हाथ में है। और अगर आप टेंशन लोगे तो उससे होगा क्या, जो एक दो इजी स्टेटमेंट आ रहे थे वो भी भूल जाओगे। तो आप बोलते बोलते बीच में रुक जाओगे। और ऐसा हर बार होता है स्टूडेंट के साथ। उनको लगता है कि आरबीएसएम का कॉल तो 20 पैराग्राफ का है, तो क्या करेंगे, चौथे पांचवें पैराग्राफ में जाके लटक गए। क्या फायदा? इससे अच्छा है कि आपको 7 पैराग्राफ 8 पैराग्राफ ही आए, उतना ही तो कम से कम बोलो, 8 नंबर तो मिलेंगे। नहीं तो 20 पैराग्राफ का लोड लेके 4-5 पैराग्राफ भी आंसर नहीं कर पाए, बस हो गया, आपको 3 नंबर दिया। इससे बेहतर है कि 10 पैराग्राफ का आंसर करो, 10 डायरेक्ट छोड़ दो, 10 नंबर तो मिलेगा आपको। डन? तो yes, these calls are lengthy and this is one of the lengthiest call in the RT, but आपको आंसर करना आसान हो जाएगा अगर आप हर एक सिचुएशन को वन बाय वन करके पेपर पे प्लेस करोगे। अगर डर के घबरा के प्रेशर में आ जाओगे कि सब कुछ आंसर करना है तो आप कुछ नहीं आंसर कर पाते हो, राइट? So these are the calls regarding RVSM, and trust me, this is one of the largest call. Yes, I do agree कि this is the largest call, but it doesn't mean कि this is the toughest one. टफ लगा कुछ भी जब मैं, अच्छा एक चीज मेरे को ऑनेस्टली बताओ, when I was writing the answer, तो ऐसा कुछ था कि आपको समझ में नहीं आया हो? समझने में कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम था? सर आप जब जैसे बताते हैं तो चला जाता है, डाउट ही नहीं आता। जब फिर करते हैं तब डाउट आता है कि हाँ ये तो हाँ, ये कैसे होगा तो, फिर। तो इसका क्या मतलब वो पता है कि टॉपिक इजी है, समझना आसान है, याद करना मुश्किल हो रहा है, राइट? आपको दोबारा से रिटेन करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, क्या है पेपर में किलो? याद तो आ जाता है पर ऐसा है कि लिखने के टाइम पे मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या क्या करना है, क्या वेरी गुड, बहुत ही आई डेफिनेटली डू एग्री, आई डेफिनेटली डू एग्री। वो कैसे जाएगा पता है? प्रैक्टिस से। और जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो जो मैंने अभी क्लास में बताया आपने उसको नोटबुक पे लिखा होगा डेफिनेटली। तो प्रैक्टिस करने से पहले उस नोटबुक पे लिखे हुए कॉल को थॉरोली शुरू से लास्ट तक एक बार पढ़ो, फिर समझो कि कैसे कैसे सर ने आंसर किया था, तब अपने से लिखने का प्रैक्टिस करो। और सपोज
जब आपने खुद से लिखने का प्रैक्टिस किया, 4 लाइन आपने लिखा, 5वां भूल गए, तो चोरी करना समझते हो ना? चोरी करो बस अपने नोटबुक से कि सर ने 5वां लाइन पे क्या लिखवाया था, एक बार देख के लिख लो। फिर 6ठा 7वां लाइन आप लिख पाओगे अपने मन से। फिर सपोज 8th लाइन आप अटक गए, वापस जाओ कि 8वें लाइन पे सर ने क्या लिखा, फिर आप 8th लाइन लिख पाओगे, लाइक दिस। और ऐसा देख देख के आंसर लिखो, 2 बार 3 बार 4 बार। ट्रस्ट में 5th टाइम से आपको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि पहले बार में ही आंख बंद करके आंसर करते हैं, जैसे हम लोग बचपन में याद करते थे, तो क्या करते थे, एक बार देख के आंसर रट लिया, फिर आंखों के ऊपर उंगली रख के ऐसा सोचते थे कि बोल के देखता हूं याद हो रहा है कि नहीं, बोल के देखता हूं याद हो रहा है कि नहीं। ऐसा अगर करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने तो आंसर जो दिया उसको कॉपी करो, ट्राई टू कॉपी, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर। ठीक है, तो याद हो जाएगा। अगर आप ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा लेके बैठ जाओगे जो भी हो आंसर मैं अपने मन से करूंगा, तो नहीं कर पाओगे। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट मच ऑन द प्रैक्टिस। ठीक है, सेम थिंग वाज हैपनिंग विद मी आल्सो व्हेन आई वाज स्टूडेंट। सेम थिंग मेरे साथ भी होता था। तो आप वैसे करो, सपोज हम लोग बचपन में जब कोई भी चीज याद करते थे तो कैसा याद करते थे, ऐसा आंख के ऊपर हाथ रख लिया और ऐसे याद करते थे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब सडनली भूल गया, 5 4 जा 20, तो क्या करते थे, ऐसा उंगली हटा के चुपके से देख लेते थे कि 5 4 जा 20, फिर ऐसे हाथ रख के याद करते थे। आप भी करो ना वैसा। हु इज स्टॉपिंग यू? यू आर अलोन इन योर होम, राइट? सो डू दैट। ऐसा आंख के ऊपर रख के देखो, और सपोज 5वां लाइन भूल गए तो थोड़ा सा उंगली उठा के देख लो कि क्या लिखा है उधर, फिर देखो। तो आप खुद से लिखो, भूल रहे हो वापस जाओ लिखे हुए पे कि क्या लिखा हुआ 5th लाइन में, तो उसको पूरा कर लिया। समझने में प्रॉब्लम नहीं है तो याद करना मुश्किल नहीं होगा, बट दैट विल रिक्वायर प्रैक्टिस। तो जो टेक्निक आपको आती है सब अप्लाई कर दो, गोल इज याद होना चाहिए। डन? सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आरवीएसएम का वो हो जाएगा, आरवीएसएम आप ऑलरेडी लूज कर दोगे। तो ये लेंदी लेंदी कॉल्स है, एक बार देख के थॉरो रीड आउट किया करो कॉल्स कि मैंने क्लास में क्या बताया। उसके बाद प्रैक्टिस पे खुद से आंसर करने की कोशिश करो, और अगर खुद से आंसर करने में प्रॉब्लम आता है तो वापस जाके कॉपी करो कि सर ने क्या लिखवाया था, फिर आके लिख लेंगे। डन? 2 बार 3 बार 4 बार करोगे, 5वें टाइम से इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट ओके? दैट्स व्हाई अभी जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बताया, तो मैंने यही बताया कि सॉल्व्ड आंसर से प्रैक्टिस करना है। डायरेक्ट अनसॉल्व से जाओगे तो हवा ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है इधर, क्या आंसर करूं। सॉल्व आंसर से कि सर ने सॉल्व्ड आंसर्स में कैसे कैसे आंसर लिखा है, वैसा वैसा ही आंसर करने का कोशिश करता हूं। डन? सो दैट्स मच इनफ फॉर टुडे। आप लोग रिवाइज करो। आरवीएसएम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आरवीएसएम इज नॉट अ स्टैंड अलोन टॉपिक। आपने देखा यहाँ पे पेन था, आरसीएफ था, डेविएशन था, पोजीशन रिपोर्ट था। सो दिस रिक्वायर्स अ ह्यूज एनर्जी। प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। डन? फिर मॉकअप में हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलो, गुड नाइट फॉर टुडे। We'll see you tomorrow 9 o'clock, and let me show you the lecture plan as well कि कितना कवर हुआ कितना बचा है, so that you can track your pace। आप लोग खुद से तो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर नहीं पा रहे हो, ना ही आज तक मुझे बताया कि क्या छूटा क्या बढ़ा, तो मैं ही कर देता हूँ आपके लिए एटलीस्ट कि कहाँ तक हमने कवर अप कर लिया। हमने लेक्चर 17 तक के टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है? और ये जो आपको 3 लेक्चर्स दिखा रहे हैं ना, ये एक दिन का टॉपिक है, ट्रस्ट मी, ठीक है? भले मैंने इसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, बट ये एक दिन का टॉपिक है। स्टिल विल स्पेंड 3 मोर डेज, ठीक है? तो हमने पीछे पायलट रिपोर्ट और एयर रिपोर्ट छोड़ा हुआ है, हमने पीछे एक और टॉपिक छोड़ा हुआ है, सेक्टर रिपोर्ट, ठीक है? तो 2 टॉपिक पीछे का और 5 टॉपिक आगे बचे हुए हैं। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग क्लास करेंगे टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। डन? तो आरवीएसएम कॉल पे आज थोड़ा और टाइम दो। कल पहले हम लोग मॉक प्रैक्टिस करेंगे। देखो हमारे लेक्चर 18 का पार्ट है मॉक प्रैक्टिस, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज दैट ओके टू एवरीवन? समझ में आ गया?
So we are almost close to our finish line of the classes. So not to worry and not to even do hurry also. कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, 2-3 दिन का सिलेबस है, खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करते रहना। आप लोग सॉल्व्ड आंसर सॉल्व करते रहो पुराने क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस एज वेल. So that's all for today. I'm closing the meeting. We'll see you tomorrow. Good night everyone. Have a good night. चलो सो जाओ अच्छे से, कल फ्रेश माइंड से फिर पढ़ना. डन? चलो गुड नाइट. गुड नाइट सर. बाय बाय. गुड नाइट. बाय.